Please start your table to Wise IAS channel. I am Dr. Madhur, former assistant commandant and currently working as veterinary surgeon in Government of Haryana. So this is my, I think, first lecture with your batch. Already I have completed this portion for other batches. Maybe few people are here revising this syllabus, revising this topic. So first of all, congratulations to you that you charted on this journey of UPSC, very daring journey, and it required a hell lot of dedication, determination, courage, and conviction to even start preparation for this examination. And even after that, you picked a science optional, although it is a very scoring subject, but there is a myth in the society that science options are not scoring. Somehow you can say that this kind of options have become बोरिंग बिकॉज हमारे सिलेबस में हमारे सब्जेक्ट में इंटरेस्टिंग बनाने का कुछ नहीं होता बट वी आर नॉट हियर टू एंटरटेन यू वी आर हियर टू मेक यू पॉसिबल make you possible to get maximum marks in the next examination. And if I tell you this is the first lecture with you people, I don't know if how many of you have already taken another classes with me. If you want to become an IAS officer, you must score at least 280 to 290 marks in your optional. Though over the years, UPSC has done certain tricks to maintain the hegemony of GS. In 2016, 17, 18, in those years, it was easy to score more than 300, even 320 marks in optional. बट उससे हो क्या रहा था, स्केलिंग में प्रॉब्लम आती. कुछ लोगों के पास कुछ ऐसा सब्जेक्ट है जो स्कोरिंग नहीं है, जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आज पे ज्यादा अच्छे मार्क्स नहीं आते. एंथ्रोपोलॉजी इज डूइंग गुड. सो टू क्रिएट सम काइंड ऑफ लेवल प्लेइंग फील्ड, बट दे रिड्यूस द मैक्सिमम मार्क्स इन ऑप्शन 30-40 marks they reduce to maintain the hegemony of GS and provide level playing field. So now scoring this much of marks is not that easy. And if you are scoring less than this, suppose 250, your selection is difficult because competition is cutthroat these days. So how to score this segment? यहाँ तक कैसे पहुंचे? So first of all, you have to be thorough with your syllabus. When I say thorough with the syllabus, that doesn't mean that you have to cover the 100%. There is something called 80-20 rule. If you go for major 80% of the portion, your effort will be less, around 20%. But to cover the rest 20%, you have to put 80% of your effort. That's not fruitful. In जर्नी यूपीएससी एक बात हमेशा याद रखना, whatever you do, whatever you read, be it newspaper, GS1, GS2, GS3, GS4 ethics, this is very important. CBA, cost benefit analysis. If the cost involved in doing something is way more than the benefit derived, that is a negative equation. Don't go for that equation. प्रीलिम्स के 4 दिन पहले अगर कोई आपको एक बुकलेट ला के दे कि इसमें से 2 क्वेश्चन कंफर्म आएंगे, 5 क्वेश्चन कंफर्म आएंगे, और इट विल टेक योर 4 कंप्लीट डे, डोंट गो फॉर दैट. इट्स बेटर टू डू रिवीजन फॉर द लेफ्ट 95. Whatever you do, you have to go for CBA. So we have to focus on this portion. The topics for which UPSC is asking questions repeatedly over the years, maybe in one form or the other. Smart understanding, smart preparation. Otherwise, it's an endless ocean. The subject, the syllabus of UPSC mains is endless. See the topic poverty and the issues associated with poverty. इसके साथ तो मैं पूरी दुनिया लिंक कर दूंगा. पॉवर्टी के साथ तो मैं सब कुछ लिंक कर दूंगा, WTO से लेके MSP और ये सब लिंक कर दूंगा मैं इसका.
That means syllabus is an eyewash. You should consider one thing, that everything is included, but with mature thing, CBA. When everything is included, how can you go for smart understanding, smart preparation? By analyzing PYQs. Your PYQs are your bedrock, वो आपकी फाउंडेशन है कि ओवर द इयर्स कैसे कैसे क्वेश्चन पूछने में चेंजेस आ रहे हैं. नो डाउट हमारे ऑप्शन में भी कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंसेस आए हैं इन लास्ट 3-4 इयर्स. मार्क्स आने में एंड क्वेश्चंस का लेवल पूछने में देयर आर कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट. डिनायल मोड में जाने से कुछ नहीं होगा. So by understanding all those aspects, we have to put our effort on those topics which are likely or more likely to appear in the examination. एक मैकेनिकल माइंड से नहीं करना कि वो टॉपिक अगर दिया हुआ है इंडेक्स तो हम ऐसे ही तैयारी करेंगे, पहले टॉपिक 1 फिर 2 फिर 3 4 ना. If topic 21 has more weightage, give time to that topic first. So this is something which is related to syllabus. Now even if someone is thorough with the syllabus, complete syllabus coverage, the second most important thing is linkages. How you link the topics, how you connect those topics, और कैसे इस क्वेश्चन को आपने रिसेंट पास्ट के एग्जांपल से लिंक कर दिया. दैट्स क्रिएटिविटी. अब ये कैसे डेवलप हो गया? आई ऑलवेज से टू एवरी एस्पिरेंट दैट read less, think more. आप पढ़ो कम, but you have to think about that. If I ask you about governor, role of governor, think about that. उसे dimensions क्या है? Constitutional provisions, Constitution Assembly debates. Provision से पहले debates हुई थी ना. Debate में क्या बोला गया? Then over the years, good examples, bad examples. What are the recommendations for the office of governor? What are the guidelines of Supreme Court? What Punji Commission has said? What Sarkari Commission has said? Interstate relationships. Topic is one, but dimensions are huge. You never know UPSC किस टॉपिक गवर्नर ही है, but you never know किस सेगमेंट से क्वेश्चन पूछ लेगा. You could link the things. If I ask about Northeast, immediately आपके दिमाग में आना चाहिए नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या है? बॉर्डर एरिया, गोल्डन ट्रायंगल, ट्रैफिकिंग, रेड कॉरिडोर. I mean, these dimensions need to be explored. Read less but think more. Ultimately, you have to write one question in 9 minutes. It's extremely difficult task. और उसके बाद you have to think कि कैसे ये recently किसी न्यूज में था. मीडिया सब न्यूज करेंगे. When you are suffering from something called information terrorism, social media, YouTube, Google, these all things are flooded with information. How to filter that information so that you will get a meaningful picture of something. That picture is more likely to be appear in the examination, so that you can write that thing in less than 9 minutes. So read less, think more, explore the dimensions. Think about poverty. Why poverty? Why we are even talking about poverty even after 75 years of independence? Germany got independence in 1871. See their level of development. 40-44 साल बाद तो वर्ल्ड वार करवा दिया. Why we are poor? Where are the resources? Where are the pilferages? Inclusion, exclusion error, policy issues, implementation issues, agencies involved. Thinking, developing that mindset of thinking, that critical thinking is very important. And trust me, you are the luckiest ones that you have the leverage, you have the luxury of critical thinking.
Not everyone has the luxury of critical thinking, I'm telling you. So first thing, thorough syllabus. Second, linkages. The third important thing is presentation. Presentation. A uniform thought. यूनिफॉर्म थॉट. जब आप आंसर लिखो ना, वो आंसर हैफेजार्ड नहीं होना चाहिए कि पढ़ने वाले को लगे यार ऐसी दो चार इंफॉर्मेशन ऐसी यहाँ डंप कर दी, फिर कुछ और लिखी, फिर तीन चार यहाँ डंप कर दी. दैट होल आंसर should be a streamlined chain of thought, very streamlined, very smooth. The moment examiner layman पढ़े ना, this is that's it. कोई एग्जामिनर आपका आंसर पूरा नहीं पढ़ेगा, but they go for keywords. कीवर्ड्स के बाद जो आपने अंडरलाइनिंग की हुई है वो जितना सिंपल लिखो. I always say to every aspirant, if you are able to make life of examiner easy, the examiner will make your life easy. Obviously, you have to convince examiner for less than 5 seconds. 5 सेकंड अगर कन्विंस कर लिया, वो अब मार्क्स देखे तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाएगा ना. ऐसा तो नहीं कि शाम को जाएगा फिर सोचेगा अरे यार वो एक कॉपी थी उसमें उस क्वेश्चन में तो उसने यार मेरे को बेवकूफ बना दिया, तो अगले दिन जाएगा निकालेगा कॉपी नंबर काटेगा, कुछ नहीं. You have to convince examiner for 2-3 seconds and your job is done. But it's easy said than done. Why? These type of thing, to develop these type of things, you have to put extremely high level of effort thinking. ये आपको अपने डेस्क पे डेवलप करनी पड़ेगी. धीरे 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 डेवलप हो जाएगा. आज एक क्वेश्चन करेंगे, उससे आपको समझाऊंगा कैसे आपको आंसर लिखें. जैसे कि आपके साथ पहली क्लास है, तो मेरा जो टास्क है वो आपको ओरिएंटेशन देने का इस लेक्चर में ज्यादा है. क्लासेस क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहा है, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन द मार्केट. कितनी बुक्स पढ़े, कुछ मर्जी कर लो, करे जाओ, कुछ नहीं बना उससे. और जो तो ये बातें समझ में आती है ना कि जो आज मैं कह रहा हूं, तो वैसे बहुत देर हो चुके थे, 3-4-5 अटेम्प्ट जा चुके थे. Look, prelims is dangerous. No doubt about it. Prelims is extremely dangerous. तो बूचरिंग होती है. और सीसेट के आने के बाद और भी dangerous. So difficult is always means because there is a blank sheet in front of you. तो वो खुद सोच के आपको फिल करना है, and that too very limited amount of time. और ये काम आपको करना है और 3 घंटे लगातार करना है, दिन में 2 बार करना है. सीधे लेवल मैराथन भी यही चीजें मैराथन. तो स्टेमिना चाहिए हाथों का भी और थिंकिंग का भी कि कितनी फास्ट आप थिंक कर पा रहे हो. अगर आप अपने डेस्क पे सोच नहीं पा रहे, यू आर नॉट एबल टू एक्सप्लोर द डायमेंशंस, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दैट यू विल एक्सप्लोर डायमेंशंस इन सच ए paucity of time. ठीक है. सो थर्ड थिंग इज प्रेजेंटेशन. तो जब ये तीनों चीजें मिलती है तब आपका स्कोर जाके 200 से 290 तक पहुंचता है. एंड यू विल फाइंड योर नेम एंड योर रोल नंबर इन दैट होली पीडीएफ. ओके. सो बातें चलती रहेंगी, इसके अलावा करंट अफेयर में भी बहुत कुछ चल रहा है, कुछ डिस्कशन चलते रहेंगे. तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. सो एनिमल रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन ओवर द इयर्स आते हैं, रिपीटेडली आते हैं. सीमन प्रिजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. डाइल्यूएंट्स, एआई के ऊपर क्वेश्चन, रिपीट ब्रीडिंग, एनिस्टर्स के ऊपर पहले तो बड़ा रिपीटेडली क्वेश्चन आते थे, बट अभी 3-4 साल से नहीं आ रहे. बट यू नेवर नो, दीस आर वेरी हॉट टॉपिक्स. What some topics in this week, okay? तो स्टार्ट करते हैं. Ultimately, my task is to make the things easy, simplified. Complicated things are written in the books. In the notes available in the market. YouTube पे हर जगह मिलेगी. But how to make simplify? How to make things simple? तो वो देख के एक बारे में समझ में आ जाए क्या है. एक चीज और, ये एग्जाम आपके कॉलेज एग्जाम जैसा तो है नहीं. 5th ईयर में 6th आपके 4th ईयर में आप जैसे एनाटॉमी में लिखना होता है कि एक ट्रैक पोस्टिंग गिर गया, फिर 120 डिग्री का टर्न लिया, लेफ्ट गया, राइट गया. स्पेसिफिक चीज तो है नहीं. यूपीएससी विल आस्क अबाउट ब्रॉड थिंग्स सो दैट यू हैव टू समराइज मेनी थिंग इन जस्ट 2 or 3 पेजेस. सो अल्टीमेटली यू हैव टू पिक उस सेगमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मुझे वही लिखनी है, फालतू नहीं लिखना.
ठीक है, चलो समझते हैं इसको। अब स्ट्रेटजी क्या है हमारी, डेफिनेशन क्या है, स्ट्रेटजी मैंने आपको बता दी क्या है हमारी स्ट्रेटजी, टू मेक थिंग्स इजी एंड सिंपल फॉर द एग्जामिनर टू अंडरस्टैंड and that individual will give you marks. Okay. अब एनिमल रिप्रोडक्शन, एंड्रोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डिफरेंस बिटवीन सीमन, स्पर्म, मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार आया है। मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिन्हें आप लोग कब रिपीट हो जाए। ठीक है, इसके अलावा ब्लड एंड नर्व सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे लास्ट में। रोज ब्लड एंड नर्व सप्लाई हर एक ऑर्गन की याद करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। समहाउ एक रीडिंग ले लेंगे, और क्या होता है कि जब आपने पूरा क्वेश्चन लिख लिया, लिखने के बाद नीचे करेंगे तो फैक्चुअल चीजें और अच्छी लिख दो जो दूसरों से अलग है, देन फैच यू 1.5 और 1 मार्क्स एक्स्ट्रा। ओके, सो दीज आर द सब टॉपिक्स। अब हम इसको सेग्रीगेट करते हैं। सिविल क्वालिटी प्रिजर्वेशन एंड एआई, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज एआई के ऊपर ना होल मिल्क इकोनॉमी डिपेंड है। एआई ने रेवोल्यूशन लाया, तो दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट। एनी टॉपिक दैट हैज अ वेरी बिग लार्जर इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी। जो इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट होगा वो ऑब्वियसली सोशल स्टेटस बढ़ेगा। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है डबलिंग फार्मर्स इनकम एंड एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटी में लाइव स्टॉक भी इंक्लूडेड है। ओके, component of semen, composition of semen, spermatozoa, these are not that much important। ये आपके कॉलेज लेवल के एग्जाम होगा, क्या आपका टेस्ट कर रहे हो फाइनल में, प्री फाइनल ईयर में, कि आप कितना वो रट्टेबाजी वाली बात, इसका इंपैक्ट इतना ज्यादा इकोनॉमी पे नहीं पड़ेगा। सो दीज आर लेस इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू द अबव। केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इजैकुलेटेड सीमन, इंपॉर्टेंट। फैक्टर्स अफेक्टिंग सीमन इन विवो एंड इन विट्रो, अगेन इंपॉर्टेंट। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपके पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है कि कैसे आप इन विवो, इन विट्रो इज मोर इंपॉर्टेंट। हाउ इन विट्रो देयर आर फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द सीमन क्वालिटी, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू एड्रेस दोस फैक्टर्स, व्हाट्स द पर्पस ऑफ, व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ दैट होल पर्पस? दैट वुड बी नलिटी। सो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग सीमन प्रोडक्शन एंड क्वालिटी, अगेन ए लार्जर इम्पैक्ट, इंपॉर्टेंट। सीमन प्रिजर्वेशन, कंपोजिशन ऑफ डाइल्यूएंट। अब डाइल्यूएंट तो बहुत सारे हैं। पॉज हो गई सर, सॉरी वीडियो पॉज हो गई थी सर। वीडियो पॉज अभी चल रहा है? जी सर। हो सकता है आपका थोड़ा नेटवर्क इशू हो। ओके, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम तो आप यू आर फ्री टू आस्क। सो डाइल्यूएंट काफी सारे हैं, रूम टेम्परेचर वाले अलग हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन वाले अलग हैं, तो इसमें सारे याद करने का कोई फायदा नहीं। यू नेवर नो, यूपीएससी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ ले कि भी राइट वन डाइल्यूएंट कोई भी अपने, हालांकि ट्रिस, एग योग, रिंगिस ये सब पूछे हो। सो जो कॉमन है ट्रिस, एग योग और एग योग वो है, वही याद, उनके कॉम्पोजिशन को आपने मेमोराइज करना, सारे नहीं करने। दैट मींस रिलेटिवली लेस इंपॉर्टेंट। स्पर्म कंसंट्रेशन, ट्रांसपोर्ट और डाइल्यूटेड सीमन। अब ट्रांसपोर्टेशन कंसंट्रेशन भी ज्यादा कुछ है नहीं, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट है वो आप देख लेंगे। बाकी ट्रांसपोर्टेशन में इंफ्रास्ट्रक्चर, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज और दो लॉजिस्टिक्स इश्यू विल कम। डीप फ्रीजिंग टेक्निक, ये जो मेथोडोलॉजी है ना, ये इंपॉर्टेंट। ये स्टेप होते हैं, इक्विलिब्रेशन किसे कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन दो 10 स्टेप्स। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। डिटेक्शन ऑफ ईस्ट्रस एंड टाइम ऑफ इंसेमिनेशन, इंपॉर्टेंट और इजी भी है, ये तो रिवाइज करना भी है, एक बार आप देखोगे तो सब कुछ आपको वैसे ही रिकॉल हो जाए। इजी टॉपिक्स। एंड इनफर्टिलिटी, ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें पास्ट से यूपीएससी ने काफी क्वेश्चंस पूछे, बट इन रिसेंट पास्ट लेस इंपॉर्टेंट, बट यू नेवर नो कब किस एग्जामिनर के पास क्वेश्चंस बन जाएगा, कोई इस क्वेश्चन को पूछ लो, तो इजी है, इसको भी देख लेंगे। ठीक है, सो हमने इनको क्या करना, वेटेज देनी है, वेटेज।
अब हम बात करें कि एंड्रोलॉजी क्या होती है, गायनेकोलॉजी क्या होती है। सिंपल थिंग, द स्टडी ऑफ हेल्थ ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सिंपल। सिमिलरली, स्टडी ऑफ हेल्थ ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब जब हम आंसर लिखेंगे, देखो एक चीज बताऊं आपको, व्हेन यू स्टार्ट आंसर राइटिंग, एक फॉर्मेट याद रखना, रेड D3। जैसे ही आप कोई क्वेश्चन स्टार्ट, चाहे वो जीएस में चाहे वो ऑप्शन में, कोई भी क्वेश्चन है, immediately ask to your brain, do you have any report available? हंगर पे क्वेश्चन आ गया तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स, क्या वो रिपोर्ट अवेलेबल है, कोई इंडेक्स अवेलेबल है। सिमिलरली इंडेक्स, इसके अलावा ये ना हो तो कोई ऐसा इवेंट हुआ जिससे वो चीज न्यूज में थी रिसेंट पास्ट में, देन D3 डायग्राम, डेफिनेशन, डेटा। इस फॉर्मेट को याद कर लो बस, आपको आंसर स्टार्ट करना इजी हो जाएगा। इमीडिएटली आस्क टू योरसेल्फ, read D3, do you have any report available, index available, न्यूज आइटम अवेलेबल। तो कोई डायग्राम या डेफिनेशन या डेटा, सबसे आसान काम तो इसमें होता है डेफिनेशन वाला। स्टार्ट आंसर विद डेफिनेशन, ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला ओवर द इयर्स, इजी। बट समहाउ कोई रिसेंट न्यूज हो, कोई रिपोर्ट हो, जैसे देयर इज अ रिपोर्ट कॉल्ड ग्लोबल burden of disease. That report says that in India, air pollution is #1 killer. If questions come about pollution or polluted cities, stubble burning, issues with that, without definition is a bad tried and tested formula. But by giving those kind of things, it immediately catches attention on the examiner. This structure will help you in GS especially. GS1, GS3, GS2. But the problem with our subject is that we don't have much of report, index news. News may be news available because LSDI, AII, HPA, highly pathogenic avian influenza, all those things make news. So उसमें क्वेश्चन जो आया था LSD में, you can start with that. Otherwise, science technical background में you don't have that, leverage, luxury to start with, story making. But in GS, you can definitely start with either data, diagram or index news. These one are better. हाई लिखने के बाद आप डेफिनेशन दे दो कि इसका मतलब ये होता है, that immediately catches attention. Okay, so try to go for one-liner or easy definitions that is easy to understand. So andrology, study of the health of male reproductive system. That's it. Simple. Keep things short and simple. There is a formula used in armies. Kiss principle, don't take otherwise. Keep it short and simple. मेंस में एक ही चीज है, less is more. Summarize things. Minimum words में maximum चीजें बोल दो, you will get answer marks. Okay. These are the simple definition. हाँ, one thing is sure. Don't bluff in the definition. अगर नहीं आ रही, नहीं समझ में आ रहा, कुछ नहीं समझ में आ रही, बन ही नहीं पा रही, लीव इट। ब्लफ मत करना है, क्योंकि डेफिनेशन में अगर आपने करेक्टरिस्टिक गलती कर दी ना, आपने ब्लफ कर दिया, तो बहुत गलत इंपैक्ट आता है उसमें।
एग्जाम में बहुत बहुत गलत इंपैक्ट जाएगा। डोंट ब्लफ। ओके, सी अल्टरनेटिव्स की कैसे स्टार्ट कर सकता हूं मैं, और ये चीजें आपको विद इन पीरियड टाइम समझ में आएंगी। अब देखो, वुमन रिप्रोडक्टिव ट्रैक, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। अब देखो थिंकिंग कैसे होती है, कोई क्वेश्चन है वुमन रिप्रोडक्टिव ट्रैक पे, ये तो 10 मार्क आएगा या फिर मैक्सिमम 15 मार्क। The task is not to write the answer. The task is to write the answer in a limited set of time. And that is effective. So, the immediate response, I don't think thinking कैसे डेवलप करें, there should be certain template. आप randomly ऐसे सोचोगे तो कभी दिमाग में नहीं है। अब सोच देखो, there is something called bull reproductive track or system. Try to find out 3-4 main things. कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक की बात करें, दैट मींस एक कॉपुलेटरी ऑर्गन होगा, देन देयर इज सर्टेन समथिंग कॉल्ड टेस्टिकल्स, अब उसके साथ एसोसिएटेड कुछ होंगे एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स, देन देयर शुड बी कंडक्टिव ट्यूब जो चीजें लेते हैं, दैट मींस वासा डिफरेंशियल डक्टल डिफरेंस। इमीडिएटली आपके दिमाग में 4 चीजें आ गई ना। अब नाउ एक्सप्लोर ईच डायमेंशन। से फॉर एग्जांपल अगर हम स्टार्ट करें, देयर आर 3 एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, काउपर्स और बल्बो-यूरेथ्रल ग्लैंड्स। इमीडिएटली यहाँ पे ये 3 चीजों के बारे में लिख दिया। आपने रिप्रोडक्टिव ट्रैक के बारे में डेफिनेशन दे दी, द हेल्थ ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंडोलॉजी, दिस एंड दिस क्या होता है, इट हैज फॉलोइंग कंपोनेंट। नाउ एक्सप्लोर फर्स्ट असेसिंग सेक्स ग्लैंड। स्टार्ट दैट सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर्स और बल्बो-यूरेथ्रल ग्लैंड। They secrete their secretion in the urethra, which then mix with secretions of testicle to form a component called semen. क्या आपका accessory sex gland, simple definition to form a component called semen. ये डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ा सिंप्लीफाइड डायग्राम। अब आपने डायग्राम याद कर लिया, आप ग्लैंड पे हैं, आपको पहला दिखा दिस वन सेमिनल वेसिकल। अब देख आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं है ये डायग्राम में। First thing which is clearly visible कि it is paired. It is paired. आपको दिख रहा है कि भी ये सरफेस स्मूथ नहीं, that means it's lobulated. तीसरी चीज की पोजीशन लिख दो बस। पोजीशन क्या है? This one is bladder. ये है ब्लैडर। अब ब्लैडर के पोस्टीरियर पोर्शन के डोर्सल एस्पेक्ट पे इट इज लोकेटेड। कुछ याद करने की जरूरत नहीं, दिख रहा है कि वो पेयर्ड है, सरफेस कैसा है, पोजीशन कैसी है। इसके बाद अब कोई ग्लैंड है, सब वो पर्पस भी होगा, अब इसमें ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं। आपको इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट याद रखें। अप टू 50% ऑफ कंपोनेंट ऑफ सीमन इज मेड बाय सेमिनल वेसिकल, एंड आउट ऑफ दैट वन इंपॉर्टेंट इज फ्रक्टोज। फ्रक्टोज प्रोवाइडेड एनर्जी, आउट ऑफ इट इंपॉर्टेंट वन इज फ्रक्टोज। अब फ्रक्टोज की इंपॉर्टेंस क्या है? एनर्जी तो है ही है। Now the secretion of fructose depend upon the secretion of testosterone. That means the amount of fructose gives you in that quantification of secretion of testosterone. Okay. So ये आपने फंक्शन लिख दिया, उतना ही है। इतनी देर में you will find कि आपका एक पेज तो भर भी गया, और भी आपने 2 ग्लैंड और लिखने, और उसके बाद 3 सेगमेंट और भी लिखने, स्पेस कम तो ना पड़ जाए। ओके, सो दीज थिंग्स शुड बी केप्ट इन माइंड कि आपने लिखना कैसे है। सिमिलरली आप सेकंड पे आ जाओ। अब ये प्रोस्टेट है, इट इज क्लियरली विजिबल कि सिंगुलर ग्लैंड। पोजीशन का है, ये आपका ब्लैडर है एट द नेक ऑफ ब्लैडर, located at the neck of bladder. At the located one. इसका भी क्या सिक्रेशन प्रोवाइड करता है, मूवमेंट पे हेल्प करता है स्पर्म की। इसके बाद थर्ड आता है काउपर ग्लैंड। अब देखो इसकी पोजीशन क्या है, पोस्टीरियर होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज
अगेन पेयर्ड ग्लैंड, लोकेशन देखो यहाँ पे, पोस्टीरियर प्रेजेंट काउपर्स ग्लैंड। अब ये पेल्विक यूरेथ्रा के पोस्टीरियर एंड पे है, सो बोथ आर पोस्टीरियर ऑफ यूरेथ्रा, ये पेल्विक पोस्टीरियर टू। सो बाय राइटिंग दिस काइंड ऑफ थिंग आपने 3 एसेसरी ग्लैंड के बारे में बता दिया, इंपॉर्टेंट चीज, उनकी लोकेशन को आपने मार्क कर दिया। मूव ऑन टू नेक्स्ट पोर्शन, टेस्टिकल्स। नाउ आप टेस्टिकल के बारे में स्टार्ट कैसे करें? The testicle is an organ which is covered by many layers, one of which is very dense and fibrous called corpus allogenia. आपने उसकी कवरिंग के बारे में बता दिया। Then point 2 that there are many convoluted tubules inside testicles. कौन से निफरस tubules which are responsible for production of spermatozoa. Interspersed among them are interstitial tissue which is responsible for secretion of male hormone. Okay, that means आप देखो टेस्टिकल चीज है, आपने लेयरिंग के बारे में बता दिया, उसके आपने कवरिंग के बारे में बता दिया। जो इंपॉर्टेंट काम है स्पर्मेटोजोआ प्रोडक्शन, आपने उसके बारे में बता दिया। आपने उसके बाद इंटरस्टिशियल सेल के बारे में बता दिया। अब नाउ आई विल टेल यू हाउ टू लिंक द थिंग्स। नाउ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं जो फॉर्म ए नेटवर्क, अल्टीमेटली दे कनेक्ट विद एपिडिडिमस। अब आपने जैसे ही एपिडिडिमस का नाम लिया, नाउ स्टार्ट विद एपिडिडिमस, देन इट इज क्लोजली एसोसिएटेड विद पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ टेस्टिकल्स। 30 से 35 सेंटीमीटर का मीटर का लॉन्ग होता है, एंड इट जॉइंस विद कैप्टस डिफरेंस। तो मैंने टेस्टिकल के बारे में बताया, आपने लास्ट लाइन लिखी एपिडिडिमस के बारे में, फिर आपने एपिडिडिमस के बारे में 2 लाइन बता दी, और लास्ट में आपने सेगमेंट छोड़ दिया कैप्टस डिफरेंस। नाउ यू टॉक अबाउट दैट वास्ट डिफरेंस। इट इज अ कंडक्टिंग ट्यूब, बेसिकली है क्या, कंडक्टिंग ट्यूब ही तो है, which connected with the epididymis to the urethra. कोई भी कंडक्टिव ट्यूब होगी that helps in conducting or something. There are high actually those things are lined by smooth muscles that helps in the conveyance of nerves. तो हमने टेस्टिकल के बारे में स्टार्ट किया, लास्ट में आपने एपिडिडिमस का रेफर कर दिया। आपने एपिडिडिमस से स्टार्ट किया, लास्ट लाइन वासा डिफरेंशिया, आपने वासा डिफरेंशिया से स्टार्ट किया, अल्टीमेटली आपने कंडक्टिव ट्यूब एंड स्मूथ मसल फॉर द इजी कन्वेयंस ऑफ द स्पर्मेटोजोआ। एक यूनिफॉर्म स्ट्रीमलाइन थॉट, कोई हैफेजार्ड नहीं है कि यहाँ पे कोई वासा डिफरेंशिया लिख दिया, फिर आपने एपिडिडिमस लिख दिया, फिर उनका सडनली कोई फंक्शन लिख दिया। No, not like that. A uniform chain of thought. For that two very important words. और वो वर्ड्स को भी अंडरलाइन करो, अगर अंडरलाइन नहीं किया तो वो भी नहीं दिखेंगे। तो हमने टेस्टिकल के बारे में बता दिया, वासा डिफरेंशियल के बारे में बता दिया, एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स के बारे में बता दिया। लास्ट आपका क्वेश्चन पर बचता है पीस, द मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन व्हिच हैज 3 पर्पस। फर्स्ट, expulsion of urine and deposition of spermatozoa, or you can say semen, in the reproductive tract of female. It contains erectile tissue that helps in the erection of penis. Then you talk about there is a curve called S curve sigmoid flexor, so that 1/3 of the penis is retractile back. और सबसे important part क्या है कि there are certain cavernosus spaces. There are certain cavernosus spaces, or you can say slits. Slits. When these slits are engulfed with blood, erection occurs. That helps in the deposition of semen into the
रिप्रोडक्टिव ट्रैक ऑफ फीमेल। यहाँ पे दो मसल भी होते हैं, बल्बो कैवर्नोसस एंड टिश्यू। सो द मोमेंट आपने ये डायग्राम बना दिया, यू स्टार्टेड, क्योंकि क्वेश्चन में आप पूछा ही डायग्राम था, आपने डायग्राम बनाया, एक लाइन में डेफिनेशन दी, आफ्टर दैट आपने इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बता दिए। Your job is done. I tell you, by writing such kind of question, you will easily get 6.5 or 7 marks out of 10. If that's a 10 mark. Easily. कोई भी क्वेश्चन है, पहले थिंक अबाउट द टेम्पलेट्स, देयर मस्ट बी सम टेम्पलेट्स। आपको ब्रॉड चीजें उसको सेग्रीगेट करो कि इस चीज के अंदर क्या क्या इन्वॉल्व है। किडनी पे क्वेश्चन है तो क्या होगा, नेफ्रॉन, पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले, there's certain things that must immediately comes into your mind, and then explore the dimensions कि भी हाँ यार पीसीटी में क्या है, डीसीटी में क्या है, नेफ्रॉन में क्या होता है, जीएफआर क्या होता है, कार्डियक साइकिल की बात इमीडिएटली कौन कौन से कंपोनेंट है, सिस्टोल डायस्टोल कैसे होते हैं, चार आवाज, and then try to, even if you are not able to recall everything, अगर किसी चीज में सपोज करो 10 पॉइंट है, एंड इफ यू आर एबल टू रिकॉल ओनली 4 अबाउट इट, स्ट्रीमलाइन दोज 4, अंडरलाइन दोज 4, किसी को 10 की 10 याद, एग्जाम सपोज करो एग्जामिनर भी कोई आएगा वो भी चेक करने के लिए, अब हमारे सिलेबस में तो सारे सब्जेक्ट है, अब एग्जामिनर जो आएगा वो दैट मस्ट बी पीएचडी और पोस्ट डॉक होना चाहिए, वो तो अपने सब्जेक्ट में महारत हासिल है उसको। No doubt UPSC gives model answers to every examiner, but still उसी की limitation है। That individual will always look for 3 or 4 main important points to underline हो, तो चाहे आपको कम भी याद, but try to make a streamline thought about। randomly ऐसे जैसे हम अपने कॉलेज एग्जाम में डाल देते थे, कुछ भी डाल देते थे और एग्जामिनर 5-6 नंबर दे देता था, यहाँ ऐसा नहीं। For every mark you have to earn, you have to do extreme hard work। कॉलेज हिसाब से इजी इसलिए है क्योंकि उसमें बड़ा स्पेसिफिक चीजें लिखनी होती थी, उन्होंने बहुत सारी टॉप एग्जाम स्पेसिफिक था। कल सर्जरी का एग्जाम है तो सर्जरी के बारे में पढ़ रहे हैं, बट यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ जो एग्जाम है उसमें सर्जरी, मेडिसिन, गायनी, एनिमल और वेटरनरी साइंस सब आएगा। That's why if you are able to connect things, if you learn how to write answer in such kind of subjects, trust me, you will score 280 marks। नॉलेज सबके पास बराबर होती है, सबके पास। मैं सबको ये बात बोलता हूं कि आप अपनी हार्डवर्क करके ना आप पूरे देश में टॉप 5000 में आ जाओगे, टॉप 4000, टॉप 3000 लेवल में भी आ जाओगे, लेकिन वो क्या चीज है जो 3000 लोगों को टॉप 300 में आती है, वो किसी को नहीं पता। लेकिन वो किसी को नहीं पता में एक सेगमेंट है प्रेजेंटेशन का, वन सेगमेंट इज प्रेजेंटेशन। क्या मिनिमम नॉलेज को, जितनी आपके पास लिमिटेड नॉलेज है, हाउ यू आर एबल टू एक्सप्रेस दैट नॉलेज। देखने वाले को ऐसे नहीं कि आपने एग्जाम में क्वेश्चन शुरू किया, अब ये आपने स्टार्ट किए, ये चल रहा है, ये चल रहा है, उसमें कुछ समझ नहीं रहेगा। हमारी राइटिंग में से पूरा दे सकती है, लकी आर दोज हु हैव गुड हैंडराइटिंग, फर्स्ट मीट मैटर्स। सो आपको ऐसे नहीं करना, यू हैव टू फ्लो चार्ट बनाने हैं, कुछ डायग्राम बनाना है, मिनिमम वर्ड्स में मैक्सिमम चीज आपको एक्सप्लेन करके दिखाना। सो प्रेजेंटेशन प्ले ए की रोल। इसके बारे में आगे लेक्चर्स में जब होगा तो धीरे धीरे आपको समझाता है, क्योंकि एक बार में ये चीज डेवलप नहीं होती, इट टेक्स टाइम। एंड दिस इज द अप्रोप्रिएट, मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम। जो नेक्स्ट ईयर के टॉपर होंगे ना, वो इस टाइम में डिसाइड होते हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। These 3 months decide who will be the topper of next year. जनवरी में इंक्लूड कर लो, फेब के बाद you have to completely immerse yourself in the studies of prelims। उसमें मेंस का
वैल्यू एडिशन का टाइम नहीं बचेगा आपको, फैक्ट्री बात यही टाइम है जो आखिर के ये 60-90 दिन बचे हैं, इस टाइम पे डिसाइड होता है सब कुछ। तो यहाँ पे 3 महीने में वो चीजें डेवलप करो। ओके, सो डायग्राम बड़ा सिंपल डायग्राम था, इसके बारे में ये लिखने के बाद आपने ऐसे एक्सप्लेन कर दिया, दैट इज मोर देन सफिशिएंट टू गेट 7 मार्क्स आउट ऑफ 10 इजीली विल गेट। आगे देखते हैं क्वेश्चंस कौन से आए हैं। Give the diagrammatic representation of reproductive system of bull. 10 मार्कर। अब 10 नंबर में आप के पास लिमिटेड स्पेस में आप कितना लिखो, उतना लिख पाओ जितना मैंने बताया, इससे फालतू के 1-2 पॉइंट लिखो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। जितना भी नहीं लिख पाए तो भी बहुत है, इंपॉर्टेंट स्पेस बचेगा ही नहीं आपके पास। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट थिंग्स, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। इसके अलावा दिस वन एक्सप्लेन हाउ विल यू एमिलियोरेट द प्रॉब्लम ऑफ इनफर्टिलिटी इन कैटल एंड बफलोज अंडर फील्ड कंडीशन। वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसके बारे में पढ़ेंगे, इनफर्टिलिटी और रिपीट ब्रीडिंग के बारे में। तो 20 नंबर का भी इसी टॉपिक से ऐसे फ्री के नंबर किए हुए, एक बार अच्छे से समझ लिया आपने, उसके बाद आपने एक बार रिवाइज कर लिया, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। हाँ, डायग्राम का जरूरी हो जाता है कि डायग्राम को आप रिपीटली देखते रहो। अब जो वो चीज हमने पढ़ी थी उसी के बारे में देखो, ऐसे आपने एक्सप्लेन कर देना कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, सेम चीजें है जो हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, स्क्रोटम एंड टेस्टिस। अब पर्पस क्या है, थर्मो रेगुलेशन ऑफ टेस्टिस, फंक्शन ऑफ द टेस्टिस। एक थर्मो रेगुलेशन भी है, डार्टोस मसल होती है जो नोज की स्पर्म प्रोडक्शन के लिए आइडियल टेम्परेचर 2 डिग्री लेस देन द बॉडी टेम्परेचर। सो इन winters the muscle will contract to pull testicle toward the body to get more heat, and in summer it's vice versa. Okay, epididymis, functions of epididymis हमने 1 और 2 लाइन में इजीली समराइज कर दिया। भाषा डिफरेंस, कंडक्टिंग ट्यूब, पर्पस क्या है आपको बता दिया, लाइन बाय स्मूथ मसल्स और इजी कन्वेयंस ऑफ स्पर्मेटोजोआ। असेसिंग सेक्स लेंथ के बारे में एक्सप्लेन कर ही दिया, बाकी आगे स्लाइड में लिखा भी हुआ है। यूरेथ्रा के बारे में बता दिया। हाँ, दिस व्हेन प्रीफ्यूज एंड ब्लड नर्व सप्लाई, इट बिकम्स डिफिकल्ट टू रिमेंबर ऑल दोस ब्लड एंड नर्व सप्लाई, बट समहाउ क्लासेस है, नोट्स बनाने, तो ये भी हमें डालना पड़ेगा, अदरवाइज स्टूडेंट को ये लगता है कि ये बताया नहीं। ठीक, 2019 का क्वेश्चन, एनलिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल डाइल्यूटर। सिंपल, यूज्ड फॉर डीप फ्रीजिंग ऑफ बुल सीमन विद कंपोजिशन ऑफ ट्रिस डाइल्यूटर यूज्ड फॉर द सेम पर्पस। ट्रिस इंपॉर्टेंट है, कोई भी पूछते थे एग्जामिनर्स, सो यू हैव टू मेमोराइज ट्रिस डाइल्यूटर्स कंपोजिशन and 1-2 more other important diluter, but not more than that. Don't go for more than 3. Pick your best 3, revise those 3 only. Enlist various accessory sex glands of bull and describe the contribution of seminal vesicle to semen. बताया आपको 50% वॉल्यूम फ्रक्टोज। सो आपने तीनों के बारे में लिखे, फिर डायग्राम बना के उसकी पोजीशन बता देनी, उसके बारे में आपने एक्सप्लेन कर देना है 15 मार्कर। That means every other year you will get questions in the range of 20 to 25 marks. That's huge. 25 means 10%. That's huge. For effort में से कुछ भी नहीं है, 2% एफर्ट से 10% मार्क्स मिलेंगे आपको। प्रे करो कि ये क्वेश्चन आ जाए। Scrotum and testes contains sebaceous and sweat glands. Relaxation of skin or scrotum during summer for evaporation. Thermoregulation, function of testes.
all those things in repeat mode. आधी क्लास तो आधा लेक्चर तो क्लास में ही रिवाइज हो जाता है, बिकॉज थिंग्स आर रिपीटेटिव. कॉमन सेंस. This one is diagram of testes. अब स्टैंड अलोन क्वेश्चन एक 10 मार्कर ऑन टेस्टिस आज तक कभी आया नहीं है, मुझे तो याद नहीं है. लाइवलीहुड भी इसकी कम है कि टेस्टिकल के ऊपर क्वेश्चन आ जाए. ग्राफियन फॉलिकल ओवरी के ऊपर क्वेश्चन क्या पता पूछ भी लो, इन टेस्टिकल के ऊपर पर्पस नहीं होता. ठीक है, स्टिल थोड़ा सा देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है. दिस इज कैविटी ऑफ ट्यूनिका वैजिनालिस, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जहां पर स्पर्मेटोजोआ प्रोडक्शन होता है. दिस वन इज कॉल्ड रेडी टेस्टिस जो करेक्शन मिलती है. स्ट्रेट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ऑल दीस थिंग्स आर डिस्क्रिप्शन ऑफ टेस्टिकल. ट्यूनिका वैजिनालिस, visceral layer of tunica vaginalis testis, these not are that much important. Ductus difference is important, you have to mention that. Tunica albuginea, dense fibrous layer. Testicular vein, artery, epidermis. Okay, these things are important, but standalone question आने की चांस इस पे कम है. क्यों बनता है 10 नंबर का क्वेश्चन इसमें बनता ही नहीं. एक बार शुरू में 2013 में दे यूज्ड टू पार्ट सब पार्ट्स ऑफ 10 मार्कर 5 मार्क के 2 क्वेश्चन पूछ रहे थे. उस टाइम पे शायद कभी बन जाता तो बन जाता, पर आज भी टाइम पे इसका स्कोप कम है. पर स्टिल नजर मारने में कुछ नहीं जाता. यू नेवर नो कब कमीशन एक बाउंसर मार दे. तो बेसिकली क्या है ना, सोसाइटी में डर खत्म तो इज्जत खत्म. अब इतना ही आसान हो जाए सब कुछ तो सारे आइए समझ जाएंगे. यूपीएससी का डर भी तो जरूरी है ना मेंटेन करना. सो यू विल सी कि 500 नंबर में से ना 40-50 नंबर के तो क्वेश्चन ऐसे आएंगे दैट विल बी टॉप ब्रेकर. ऐसे योर कर मारे यूपीएससी समझ में नहीं आएगी कहां से बोल कहां पे नहीं. बट हमें 50 मार्क को देखना, हमें 450 को देखना, 90% आसपास कि वो कहां से क्वेश्चन पूछ रहे रिपीटेडली. सेम अप्लाई, सेम फॉर्मूला अप्लाई प्रीलिम्स. हर साल 10-15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो समझ ही नहीं आएंगे, जिनके 3-3, 4-4 आंसर निकलेंगे. हर कोचिंग वाला अपने आंसर की में निकालेगा, और जब यूपीएससी के आंसर की आएगी दैट वुड टोटली डिफरेंट. अब उस 10-15 क्वेश्चन में साल भर एस्पिरेंट उलझे रहते हैं. अरे यार ये पूछ लिया वो पूछ लिया तो पता नहीं कहां से. छोड़ो उसको. बचे 80 क्वेश्चन जो स्टैंडर्ड आ रहे हैं ना, आप उन पर ध्यान दें. अल्टीमेटली 2023 में 75 नंबर कट ऑफ गई है. आपकी बार ज्यादा जाएगी. 2024 का क्वेश्चन पेपर आसान था, 95. आपको नेट 45 तो करेक्ट करनी है. आप उस पर फोकस करना, आप 10-15 पे फोकस करना. यू हैव योर प्रायोरिटीज अपसाइड डाउन. आपको पता ही नहीं मुझे फोकस स्टूडेंट है. ओके, सो थर्मोरेगुलेशन ऑफ टेस्टिस, हाउ इट्स डन. For optimal production of spermatozoa, टेम्परेचर 2 से 5 डिग्री कम होना चाहिए. You know this. 2 से 5 कम होना चाहिए. I told you. मसल कौन सी है? Equinomus dartos muscle. I told you. सिंप्लीफाई करके चीजों को लिखना है. Scrotoskin is richly supplied with by sweater glands. And then एक pampaniform plexus होता है. This one is important. Highly convoluted testicular artery, also called internal spermatic artery, because become entangled with pampaniform plexus. Thus, arterial blood cool down by testicular venous blood. Basically, क्या अपने heat को dissipate करने का तरीका है. सरफेस एरिया बढ़ा दो तो हीट डिसिपेट हो जाएगी. एलेंस रूल बायो में पढ़ा ना, एलेंस रूल. ठंड वाले इलाके में सरफेस एरिया कम होता है, वॉल्यूम ज्यादा होता है. Reduce heat loss. So this topic is important. Function of the testis. I told you these things are simple. The most important thing is blood testis barrier. Like blood brain barrier,
there is another topic called blood-testis barrier. So blood-brain barrier is made by astrocyte cells. Made by astrocyte cells. Important topic other is blood-testis barrier. This is important picture. Whenever you get question of blood-testis barrier, this image is, I think, the best one. So first thing first, blood-testis barrier itself is a misnomer, misleading you. Because in strict sense, there is no barrier between blood and organ. If you consider testis as an organ. Because when we talk about in two compartments, the basal compartment is in touch with blood only. So strictly speaking, it is not a blood organ barrier. Basically, blood testis में blood seminiferous tubule barrier है और seminiferous tubule में भी centralized cell barrier कहना इसको ज्यादा appropriate रहेगा. ठीक है. So आपको start करना कैसे? Basically, it is a misnomer. The blood testis barrier is a physical barrier between blood vessels and seminiferous tubules of the animal testes. The name blood testis barrier is misleading, as it is not a blood organ barrier in strict sense, but a form between centralized cells. So, it is not a blood, strictly speaking, not a blood organ barrier. Like blood brain barrier, उसमें true barrier है. Okay. अब बेसिकली इसमें क्या है, इसमें बनती है आपकी 8 लेयर. These 8 things you have to mention. These 8 things. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. This 8. This one is important because this is the tight junction. There are 3 type of junctions: tight, gap and adherence. उसके बारे में पढ़ेंगे. अब देखो क्या होता है. आपने बनाया तो पहली जो लेयर होगी obviously that will be basal lamina. बेस, पहला बेस. अब 3, 4, 5, 6 याद करने में आपको दिक्कत नहीं होगी. आपको पहले 2 याद करने हैं बेसिकली. उसके बाद पूरा सीक्वेंस ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा. सेकंड स्पर्मेटोगोनिया, बेसल लैमिना, स्पर्मेटोगोनिया. उसके बाद स्पर्मेटोसाइट फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर. सो थर्ड और फोर्थ क्या हो गया? स्पर्मेटोसाइट फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर. दैट मींस वो दोनों चीज एक ही है. सो पहला बेसल लैमिना, देन स्पर्मेटोगोनिया, फिर स्पर्मेटोसाइट फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर. अब स्पर्मेटोगोनिया फिर स्पर्मेटोसाइट के बाद क्या होता है? स्पर्मेटिड. उसके भी 2 ऑर्डर है, स्पर्मेटिड और मैच्योर स्पर्मेटिड. लेकिन फर्स्ट वाला सिंपल है और दूसरा मैच्योर हो गया. सो 3, 4, 5, 6 ये 8 में से 4 लेयर तो आपको वैसे याद है. पहली आपको बेसल लैमिना मिलेगी, सेकंड में आपको याद रखना स्पर्मेटोगोनिया. 7 दिस वन इज सेंट्रलाइज्ड सेल, क्योंकि ये जो बैरियर वो बेसिकली सेंट्रलाइज्ड सेल के बीच में बैरियर है. सी ये सेल है, ये सेल से सेल, ये बैरियर का बन रहा है बीच में. और लास्ट वन इज टाइट जंक्शन. So this centralized cell ultimately forms junctions. There are 3 types of junctions: tight, gap and adherence. So if a question comes, you draw this diagram, right? Technically it is not a blood organ barrier. It's misleading because organ और blood में barrier नहीं है. It's most appropriate should be blood and centralized cell barrier. आपने लगा दिया 8, आपने ले ली इसकी बारे में. Then you say that the centralized cell make 3 type of junctions: tight, gap and adherence. और जब कोई जंक्शन मिला है, when a junction is made, इसका मतलब confirm that there should be 2 compartments. तभी तो बीच में जंक्शन बना ना. अदरवाइज जंक्शन किस बात का? So the moment आपने junctions के बारे में लिख दिया, you talk about 2 compartments. The first one is basal compartment, the second one is adrenal compartment.
सो बेसल कंपार्टमेंट क्या है कि नाम से बेसल ये आउटर कंपार्टमेंट होता है वेयर इट इज इन कंटैक्ट विद ब्लड लीव। बट ट्रू जो जंक्शन है वो एग्लूमिनल में बनता है, इनर कंपार्टमेंट व्हिच इज आइसोलेटेड फ्रॉम ब्लड लीव। You draw the diagram. Okay. After drawing the diagram, you talk about 8 layers. After that, 3 junctions. और जंक्शन है that means कोई कंपार्टमेंट होगा. After that, कंपार्टमेंट. So next logical portion of answer should be the barrier is formed by following junctions. Right? Adherence. Yeah. Okay. This divide the seminiferous tubules into. अब जंक्शन बना तो किसी को तो डिवाइड करेंगे ना, तभी तो जंक्शन बना है. Into basal and adluminal compartment. पहले मार्क कराएगा ब्लड टेस्ट वैल्यू पे आएगा. ठीक है. सो आउटर साइड ऑफ ट्यूब्यूल इन कांटेक्ट विद ब्लड लीव, इनर साइड ऑफ ट्यूब्यूल आइसोलेटेड फ्रॉम ब्लड लीव. आइसोलेटेड फ्रॉम ब्लड लीव. अब यहीं से क्वेश्चन बनता है अपने माइंड में, व्हाई आइसोलेशन. Why isolation? ठीक लॉजिकली सर्टेन डिमांड स्ट्रीमलाइन. हाउ? Why isolation? बोलो. Because the fluid composition of seminiferous tubule and plasma is different. Fluid composition are different. जैसे सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में क्या मिलेंगे आपको? एंड्रोजन्स, ईस्ट्रोजन. These hormones which are required for the production of spermatozoa. यहां पे आपको नॉर्मली प्लाज्मा में क्या मिलेगा? ग्लूकोज, प्रोटीन. ये कंपोनेंट यहां पे कम होते हैं. ये कंपोनेंट यहां पे कब होते हैं? So why isolation? Because fluid composition of seminiferous tubule is different from this. ओके. अब जैसे आपने लिखा आपका इंट्रोडक्शन बॉडी कंप्लीट होगी. अब आपको जाना है कंक्लूजन पर. उसमें क्या लिखोगे आप? थोड़े से फंक्शन लिख दो इसके. क्वेश्चन आएगा तो राइट शॉर्ट नोट ऑन ब्लड टेस्ट इज वेरिएबल. लॉजिकली सोच रहे जो भी सोचना है. सो नेक्स्ट लॉजिकल थिंग इज फंक्शन. तो फंक्शन क्या है इसका? इट प्रोटेक्ट्स स्पर्मेटोजोआ. समहाउ प्रोटेक्शन नीडेड फॉर द स्पर्मेटोजोआ. ये समथिंग कॉल्ड ऑटोइम्यून डिजीज. क्या होगा अगर मान लो टेस्टिकल में कोई डैमेज हो जाए, कोई इंजरी हो जाए, एंड स्पर्मेटोजोआ एंटर इनटू ब्लड स्ट्रीम, those things will not be tolerated by the immune response. So क्या इम्यून सिस्टम सो इम्यून रिस्पॉन्स होगा जिसे हम कहते हैं ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स. इसको प्रिवेंट करने के लिए प्रोटेक्शन needed in the form of barrier. Other, to control the adluminal environment in which germ cells develop. उसको प्रोटेक्शन चाहिए किससे? टॉक्सिक कंपोनेंट. ब्लड में बहुत सारे टॉक्सिक कंपोनेंट होते हैं.
sperm cell is very, unique cell, na? That is the only cell which is like, that has the potential to give birth. और किसी सेल में है पोटेंशियल ऐसा? नॉर्मल रिप्रोडक्शन की बात करो, अभी आप कहते हो डोली में हुआ था, ये हुआ था, वो सोमैटिक सेल से कर दिया था, दैट इज वेरी लिमिटेड स्केल। ह्यूमन में हो पाएगा ह्यूमन कितना उसमें वो थी सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स और पूरी रिसर्च। नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है? स्पर्म सेल इज द ओनली सेल दैट हैज द एबिलिटी टू गिव बर्थ लाइव। सो उसको प्रोटेक्ट करना टॉक्सिक कंपाउंड से एंड अदर साइटोटॉक्सिक एजेंट्स, bodies or substances that are toxic to cells into the seminiferous tubule, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए अल्टीमेटली ब्लड टेस्ट इज बैरियर का जरूरत होती है। So that's how you write the answers. मेरे हाथ में कॉपी आई है, कई टेस्ट भी लिए थे, मैंने देखी उसमें कुछ बच्चों की इंप्रूवमेंट थी पर बहुतों की नहीं थी, वही पे स्टक थी। हैफिजार्डली कुछ भी लिखा हुआ था। तो ब्लड टेस्ट इज वेरी रायर। इमीडिएटली मैंने वो पिक्चर देखी, 8 लेयर देखी, इमीडिएटली मेरे माइंड में है दैट इंडिविजुअल नोज, ज्यादा देखने की जरूरत ही नहीं है। व्हाट आई विल डू, आई विल सी द कीवर्ड जो अंडरलाइन किए हुए हैं। 3 टाइप ऑफ गैप जंक्शंस, टाइड गैप एडहेरेंस, 2 कंपार्टमेंट, वेसल एडल्यूमिनल, so that the isolation of spermatozoa occurs to prevent it from, because the fluid composition, that's it, more than sufficient for the examiner. इससे फालतू एग्जामिनर देखेगा ही नहीं। इससे फालतू एग्जामिनर नहीं देखेगा। तो ये मिसनोमर है जो कहते हैं कि साइंस ऑप्शन में आपको आंसर राइटिंग स्किल्स नहीं आने चाहिए, फिर रिक्वायर। नो डाउट जो ह्यूमैनिटीज वाला स्कोप है उतना स्कोप नहीं है यहाँ पे, पर स्टिल अगर इफ यू डू ए गुड प्रेजेंटेशन, स्ट्रीमलाइन चेन ऑफ थॉट, मैटर करता है यार। जीएस में अगर 20 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में 1 नंबर फालतू लिए, 20 नंबर फालतू, कहाँ 80 जीएस में 100 नंबर आएगी जीएस में 3 डिजिट में। और ऑप्शन में तो क्वेश्चन और भी ज्यादा है, 19-20 क्वेश्चन आते हैं हाँ ऑप्शन में भी। If you are able to score half extra mark in 40 questions of 2 papers, you will get 20 extra by वो mere और कोई नॉलेज एक्स्ट्रा नहीं है, सेम नॉलेज से, with same wisdom, with same level of data information, you are able to score 20 more marks by the presentation. How effective you are in displaying your knowledge. Basically, written form of communication is a kind of communication. Virtually, examiner is asking you a question and you are giving answers in the form of writing. In interview, that occurs through verbal exchange. What if you are not able to communicate your ideas? Now, this examination is 85% contingent on your writing skills. Mains account for 85% of the marks. Rest goes to interview where your verbal communication skills will be tested. So these things matters. So कल इलेक्शन है यूएस में, क्या लग रहा है आपको कौन जीतेगा? रिवर्स क्या कहे उसको, रिटर्न और ट्रम्प, बताओ व्हाट इज योर एनालिसिस? जीएस तो पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर तो पढ़ते हो ना, क्या एनालिसिस है बताओ? डॉक्टर पूजा यादव, कैन यू प्लीज शो सम लाइट ऑन इट? क्या लगता है आपको कौन जीतेगा? एनीवन, बोलो बोलो, थोड़ा इंटरेक्शन करो, जो क्लासरूम है। यस यस बोलिए डॉक्टर साहब, डॉक्टर दक्षित। Who will win?
and how the policies of US will impact South Asia and especially India. Sorry, can I come again? तो इसको नहीं पता, ये बता दो ईरान अटैक करेगा नहीं करेगा इजराइल पे, क्या लगता है? What will be the response of Iran? Actually मेरा स्पीकर यहाँ पड़ा है, so I'm expecting कि you should say something. क्या लगता है, क्या करेगा ईरान? Anyone? No one? Interact करो. Sometimes once in a week go for group studies. पता तो चले कि सामने वाले को क्या आता है. Sometimes individual very source, very good source हो, you know, any subject की कहाँ से वो पढ़ रहा है और ये source of knowledge कहाँ से आएगी. So sometimes it's important to interact, to understand the thought process of other person. तो कितना कंस्ट्रक्टिव है, डिस्ट्रक्टिव है. जीएस 4 में पढ़ा है ना हमने कि बिहेवियर और एटीट्यूड में डिफरेंस क्या होता है. एटीट्यूड इज जनरल प्रेडिक्टर ऑफ बिहेवियर, बट बिहेवियर वो है जो आप अल्टीमेटली दिखा देता है स्पेसिफिक इंडिकेटर फॉर योर पर्सनैलिटी. सो इट्स बेटर टू इंटरेक्ट, टेस्ट योर persuasion skills. Persuasion is a very important topic in GS4. Social influence, example of social influence. न्यूज़पेपर पढ़ो तो कोई भी टॉपिक आया, कोई भी एग्जांपल आया, ट्राई टू थिंक कि भाई इस एग्जांपल को मैं कहां सेट कर सकता हूं, कौन से टॉपिक से सेट हो जाएगा. हाउ पॉलिटिकल लीडर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपिंग नैरेटिव इन द सोसाइटी. Political leaders as an institution itself, they are an institution. Okay, these things are very important. What is called as gemstone picking. अखबार को जल्दी देखो और try to find out the gemstones कि क्या क्या है आधे घंटे के अंदर उसमें से निकालो, नोट्स बनाओ. Similarly with this subject, gemstone picking, important चीजें उठाई, हमने कोई बनाई थोड़ी नहीं चीजें. जो टॉपिक है वो तो सारी बुक्स तो लिखी हुई है ऑथर्स में, कुछ मैटर इंटरनेट पे अवेलेबल है, कुछ किसी बुक में अवेलेबल है. तो जहां से जो अच्छा लगा हमने वो उठाया और अल्टीमेटली आपको पढ़ा रहे. बेसिकली वी आर गिविंग स्पून फीडिंग सो दैट यू कैन सेव योर टाइम, क्योंकि ये सारा काम आप करोगे तो टाइम बहुत लग जाएगा, इतना टाइम आपके पास है नहीं. नॉलेज तो सब जगह अवेलेबल ही है ना, इट्स ओपन, इट्स एन एंडलेस ओशन, बट अल्टीमेटली यू हैव टू गो फॉर जेमस्टोन पिकिंग कि ये बेटर है, इसको उठाते हैं. आज उठा ले कल जो होगा कहीं की अपनी नई न्यूज. इस देश में होता इतना सब कुछ है कि एक दिन बाद तो न्यूज पुरानी हो जाती. माधुरी पूरी बुच का जो हिंडनबर्ग अफेयर था इतना डेंजरस है, भूल गए लोग. पेगासस भाई वो दूसरी कोई कंट्री होती थी इसमें पता नहीं बवाल हो जाता, और हमारे देश में कोई न्यूज ही नहीं. ठीक है, सो थोड़ा इंटरेक्ट करोगे, कुछ बताओगे तो अच्छा रहता है. चलिए आगे चलते हैं. फंक्शन ऑफ एपिडिडिमस सिंपल, ट्रांसपोर्टेशन, मैच्योरेशन, एब्जॉर्प्शन. You all know these kind of things. These are easy stuff. The absorption of fluid made by testes. स्पर्म की मैच्योरेशन क्या होती है? Maturation, efficient to maintain sperm viability. Okay. Transportation, ciliated epithelium, peristaltic movement of muscle fibers. Storage, 50% of extragonadal sperms. Storage. These are the simple stuff. ऐसा क्वेश्चन आने के चांसेस भी कम है, बट समहाउ
अगर ग्राफ भी हो ना तो यू कैन गो फॉर दिस हब एंड स्पोक मॉडल। यहाँ पे लिखो ऐसे एपिडिडिमस, मैचुरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, तो उसके बाद एक एक लाइन, एक एक लाइन, एक एक लाइन, सिंपल डिपिक्शन। दैट्स हाउ यू स्कोर बार्स। ओके, अब यूरेथ्रा, कॉमन पैसेज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ यूरिन एंड सीमन, कॉमन है। अब इसमें क्या होगा ना, यहाँ पे रूल आता है आपका सेसरी ग्लैंड्स का, वाई? बिकॉज सेम पैसेज है, तो कुछ ट्रेसेस, सपोज करो कॉर्पोरेशन वाली यूरिनेशन हुई है, सो रूट पे ट्रेसेस लगे होंगे, कुछ एसिडिक होंगे, उनको रिमूव करने के लिए क्या अल्कलाइन सिक्रेशन चाहिए, प्रॉपर सिस्टम। यही तो काम है असेसरी सेक्स ग्लैंड्स का, टू एड मूवमेंट, टू रिमूव द ट्रेसेस ऑफ यूरिन। अब देखते कैसे होगा ये, आगे देखिए, ये एक पेनिस का क्रॉस सेक्शन है, दीज आर डोर्सल वेन, डोर्सल आर्टरी, कॉर्पस कैवर्नोसस, दो अब मैंने बताया था कैवर्नोसस स्पेसिस, when these spaces are engorged with blood, erection होता है, so expansion हो जाता है। कॉर्पस स्पोंजियोसम, यूरेथ्रा, रिट्रैक्टर, पेनिस मसल, हैव a look on it। तुम इसमें कर क्या सकते हो, सपोज करो कि क्वेश्चन वही है मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक का, व्हेन यू आर राइटिंग अबाउट द पेनिस, ड्रॉ दिस एग्जाम, दिस डायग्राम आल्सो टू गिव यू नो इंप्रेशन, गुड इंप्रेशन। छोटा सा डायग्राम में कुछ नहीं है इसके अंदर, घुमाया आर्टरी, लिख दे कॉर्पस कैवर्नोसस, आपको इसके बारे में पता है, कॉर्पस स्पोंजियोसम, लार्ज वेन, यूरेथ्रा, दैट्स इट। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, सपोज करो आपसे पहले वाली कॉपी को एग्जामिनर ने 6 नंबर दे दिए, आपने उसमें ऑलमोस्ट सेम आंसर लिखा है, बट आपने ये डायग्राम एक्स्ट्रा बना दिया, ये मॉरल प्रेशर बन गया एग्जामिनर के ऊपर, क्या वो 1 नंबर एक्स्ट्रा दे या आधा दे दे, बट यू विल गेट सम एक्स्ट्रा मार्क्स देन द प्रीवियस कॉपी। अब इसके बाद दिक्कत, उसके बाद वाली जो कॉपी होगी उसमें अगर ये नहीं है तो नंबर घटाएंगे उसके। दिस इज नोन एज इंट्रा सब्जेक्ट कॉम्पिटिशन। अब यहां बेनिफिट आता है अपने सब्जेक्ट का, कैसे? हमारे साल में कॉपी कितनी जा रही है, 10 15 मैक्सिमम 20 लगा लो, हद मार के। ज्योग्राफी 2000, हिस्ट्री 500, नॉट जस्ट इंटर सब्जेक्ट, इंट्रा सब्जेक्ट कॉम्पिटिशन इज एक्सट्रीमली हाई। तो आपसे जस्ट पहले वाली कॉपी क्या लिखी गई है, इसका इम्पैक्ट पड़ता है आपके ऊपर। दैट्स व्हाई लिटिल बिट ऑफ सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व, लक भी मैटर करता है थोड़ा सा। ये चीजें हमारे वाले में सब्जेक्ट में नहीं है। 10-15 only 10-15 कॉपीज मैक्सिमम। 10-15 कॉपीज का मतलब ये नहीं कि सब्जेक्ट हमारे बच्चे ले, इसका मतलब ये कि दैट आवर पीपल आर समहाउ फेलिंग इन क्लियरिंग प्रीलिम्स। तो प्रीलिम्स इटसेल्फ एक बड़ा रोड ब्लॉक है, तो प्रीलिम्स का रोड ब्लॉक क्लियर होगा तभी तो यहां तक पहुंचेंगे ना बेस तक। तो हमारे बच्चे होते हैं, आई फाइंड आज की कॉपी के कम से भी आई थिंक 5000 बच्चे होंगे, 5 से ज्यादा ही होंगे रोटेशन। प्रोडक्टिविटी स्टेज तक पहुंचने में काफी बीट आउट हो जाते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स में 98% तो तभी बार होंगे, 98% आउट, लिटरल बुचरिंग, सीसैट these days। So आप ऐसा सिंपल डायग्राम बना दो that you have to find ways to score maximum। At the end of the day, it's all about marks। कैसे भी लो, survival of the fittest।
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी में डिफरेंस क्या है? दैट एक्स्ट्रा। अभी लग रहा होगा यार इतना कैसे करेंगे, कैसे, नॉट पॉसिबल सर, आप कैसे कह रहे हो इतना कैसे करते? तो जब वो आप मिनिस्ट्री में बैठे ऊपर जॉइंट सेक्रेटरी, सो ऑल दोस बेनिफिट विल नॉट बी प्रोवाइडेड टू एनी लेमैन। तब आप ये बात नहीं बोलेंगे मुझे इतना कैसे मिल रहा है सर, ऐसे क्यों मिल रहा है? So if you want that thing, you have to work now. भाई एस्पिरेंट को इस बात से मतलब होना चाहिए कि उसके नंबर कैसे फालतू आ रहे हैं, इसके अलावा दूसरा कोई पर्पस ही नहीं होना चाहिए उसके माइंड में, बस मार्क्स मार्क्स मार्क्स। ओके सर ये डायग्राम्स के लिए सर जैसे सर जो डायग्राम बनाएंगे पेपर में, जी, उसके लिए ज्यादा सर मतलब डेकोरेटिव होना चाहिए कि रफली डायग्राम एक नो नो पता नो चलना नो, इसके बाद क्या आता है दिखना चाहिए ऐसा। डेकोरेशन का कोई पर्पस नहीं है। आप देखो अब देखो क्या है ना, वो गौतम बुद्धा ने कहा ना मिडिल पाथ इज द बेस्ट पाथ, है ना? आप चलेंगे एक्सट्रीम पे, हाँ वो कर सकते हो लेकिन आपके पास स्कोप नहीं बचेगा। आपने डायग्राम बनाना, ऐसे डायग्राम बना दिया, ये कर दिया, यहाँ पे ऐसे कर दिया, ये कर दिया, इसके डिस्क्रिप्शन में दैट इज मोर देन सफिशिएंट। मैं ये नहीं कह रहा आपको इसको ब्लू में कर दो, इसको रेड पेन में, इसको ग्रीन में करो, फिर तो एक में रह जाओ। ये पेंटिंग नहीं करनी, डायग्राम बनाना बस। अब सोचो, ये रेंज आपकी, यहाँ वाले बच्चे हैं जिन्होंने नो डायग्राम, हियर पीपल आर डूइंग पेंटिंग, लिटरल पेंटिंग, मोनालिसा बनी ठनी, यहाँ पे नो डाउट बेस्ट है, बट एट द कॉस्ट ऑफ टाइम। आई टोल्ड यू कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, यहाँ पे आपका टाइम की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है, यहाँ पे आपका इंपैक्ट बहुत कम है। मिडल ऑफ द रोड यहाँ पे रहना है। फैंसी नहीं बनाना बिल्कुल भी। सिंपल पेन लेके जाओ, उस पेन से ही बस बनाना है, जिससे लिख रहे हो उसी से बनाना है बस। हाँ नीट एंड क्लीन होना चाहिए, डेकोरेशन नीट एंड क्लीन। फंबल मत करना उसमें, फंबल करने की आदत है तो पेंसिल लेना कि मिटा के ठीक कर दो, उसके लिए फिर और एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। इट्स बेटर कि आप अभी जो बैठे हो अपने रूम में, अभी बना के देख लो, यहीं पे ब्लैक यहीं पे कॉपी पेन लेके बैठो। बहुत सारी चीजें ऐसी जो इसके अंदर नहीं है बट रैंडमली माइंड में आ रही तो आपको बता दे, जॉट डाउन नोट्स, सिंगल पॉइंट मैटर करते हैं। आपको भी ना वो जब रिजल्ट आएगा ना, आप देखो एक रैंक के ऊपर 20-20 बच्चे होते हैं, इतना टफ कॉम्पिटिशन है। एक नंबर से 2 नंबर से आपका आईएएस और आईपीएस डिसाइड होता है, लीव असाइड सर्विस आपका कार्डर डिसाइड होता है। कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप जाते, मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगा। आई विल नॉट रिकमेंड दिस, नीदर आई रिकमेंड दिस, आई वांट दिस, दीज पीपल विल श्योरली सिलेक्ट। उनका सिलेक्शन हो जाएगा आराम से। ओके, एम आई क्लियर ऑन इट? यस सर। डायग्राम चाहिए, पेंटिंग नहीं चाहिए। नो एक्सेसरीज एक्सलेंस, इसके बारे में हम डिस्कस कर ही चुके हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में, ठीक है? So 3 types: segmental vesicle, prostate and bulbourethral और Cowper's gland। अब देखो क्या ना, एग्जाम में ना डिपेंड करता है। तो दिस इज यूपीएससी एग्जामिनेशन, दे विल आस्क अबाउट द ब्रॉड थिंग्स दैट हैज इंपैक्ट ऑन द इकोनॉमी। इसके बाद 7 बजे मेरा लेक्चर है जम्मू कश्मीर वालों का, वो वेटरनरी ऑफिसर के लिए। दे विल आस्क वेरी स्पेसिफिक थिंग्स, बिकॉज वो एग्जाम जो है स्पेशलिस्ट एग्जाम, उसमें क्लिनिकल चीज ज्यादा नहीं है, यहां पे क्लिनिकल ज्यादा नहीं आएगी, सिलेबस वही है, बट एक ही सिलेबस को करवाने के तरीके में जमीन आसमान का फर्क है। सो आपको ना, यू हैव टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ योर एग्जाम, तो वो दिमाग में घुस जाएगा इमीडिएटली। व्हाट यू विल डू, यू विल बी एबल टू फिल्टर द थिंग्स इजीली। आपको ये देगा कि रेजुमेट का डोज रेट क्या है, क्रिस्टाल, मोर्जेस्टोमेट, ये क्या है, ये इम्प्लांट क्या होता है, क्रीड क्या है, ब्रिड क्या है, सीडर क्या है, उनके में कितने ग्राम का वो है, वो जरूरी नहीं है आपके लिए।
आपके लिए जरूरी क्या, प्रोजेस्टेरोन का इफेक्ट क्या है, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ ईस्ट्रस में बेनिफिट क्या होगा फार्म का, लेबर कॉस्ट कैसे बचेगी, समझ लो बात, रिक्वायरमेंट क्या है एग्जाम में। सिमिलरली डिजीज कोई भी आती है, आपके टेक्निकल एग्जाम में डिजीज को क्या पूछेगा, एफीमेरल फीवर पूछ लेगा, स्ट्रेंगल पूछ लेगा, ग्लैंडर पूछ लेगा, फुलरेमिया पूछ लेगा, कैनाइन डिस्टेंपर पूछ लेगा। आज तक मैंने कभी यूपीएससी में इसमें कैनाइन डिस्टेंपर नहीं देखा, कोई लॉजिक नहीं है उसका। किसी एक पेट को सीडी होगी, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसका सोसाइटी पे, बट दे विल आस्क स्वाइन फीवर, भाई एक फार्म है 100% मोर्टेलिटी, पूरा फार्म बर्बाद, इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ता है। ग्लैंडर के बारे में अगर पूछेगा, फास्ट सी एक्ट इसलिए पूछ लेगा ग्लैंडर के बारे में, सो स्ट्राइकल के ग्लैंडर के बारे में पूछ ले, ये है तो ब्रावो उसको तो। एलियन इन्फ्लुएंजा के बारे में पूछेगा, क्यों, कितने केसेस होते हैं पूरे देश में, ये HPAI आई और पूरे पूरे फार्म को आपको कल करना पड़ेगा, कितना इम्पैक्ट पड़ता है। So you first FMD. Why FMD? क्योंकि सब मीट एक्सपोर्ट बंद हो जाता है। Exactly. हमने FMD कंट्री डिक्लेयर किया हुआ है, आपके एक्सपोर्ट नहीं होंगे। So FMD is a very important thing. क्यों गवर्नमेंट इतना फोकस करती है वैक्सीनेशन पे? अभी हरियाणा में FMD HS की डुअल वैक्सीन लगती है, पूरे इंडिया में कहीं नहीं लगती, पर हरियाणा में लगती है। बेसिकली क्या है कि वो ट्रायल फेज में, अगर यहाँ पे 3 साल 4 साल 5 साल में अगर हरियाणा FMD फ्री हो गया तो उसको रेप्लिकेट करेंगे, और जब 3 साल तक 4 साल तक FMD कोई केस लेंगे तब अल्टीमेटली FMD फ्री कंट्री का टैग मिलेगा, तब एक्सपोर्ट बढ़ेगा। डबलिंग फार्मर इनकम कैसे करोगे, आपके एक्सपोर्ट नहीं होंगे, कैसे करोगे आप, प्रोसेसिंग नहीं होगी, मिल्क प्रोसेसिंग, मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे, कैसे करोगे आप, इनकम कैसे बढ़ाओ, और नए सेक्टर नहीं लाओगे तो कैसे करोगे आप, कब तक मिक्स्ड इकोनॉमी पे खेलते रहेंगे। That's why a lot of questions on specialized farming versus milk farming, इंपॉर्टेंस है उसकी, तो FMD पे क्वेश्चन बनेगा। रेबीज, वाई रेबीज, केरला में कितने केस हुए कि रेबीज की वैक्सीन पुरानी थी और कुछ लोग मर गए। जूनोसिस, वन हेल्थ इंपैक्ट, वन हेल्थ प्रोजेक्ट ऑफ WHO। थिंक इन लार्जर पर्सपेक्टिव, ऐसे ही कि कुछ भी पढ़ने लग जाओगे। ठीक है सर कि मैं एग्जामिनर हूं तो मेरा तुम्हारा पर्पस क्या है, यू विल बी गोइंग टू बी जर्नलिस्ट। आपको जाके कोई इंजेक्शन लगा के एज ए वेटरनरी ऑफिसर नहीं बैठना, यू हैव टू मॉनिटर द थिंग्स, दैट मींस यू नीड टू हैव वर्केबल नॉलेज ऑफ ऑलमोस्ट एवरीथिंग। पार्वो वायरस के बारे में क्या करूंगा मैं पूछ के यूपीएससी मेंस में, कोई पर्पस बनता है पार्वो वायरस का? कोई एक सिलसिला कभी एक बार पूछ ली वो बात अलग है, दैट डजंट मैटर। 10 साल 20 साल में अब देखो ना कभी पारो वायरस का 9 डिस्टेंपर आई, इंपैक्ट ही नहीं है उसका। पर ये these two diseases are extremely important for your veterinary officer examination, क्योंकि वहां उसकी रिक्वायरमेंट है। तो ये चीज अपने दिमाग में बिठाओ, प्रेजेंटेशन, लिंकेजेस, फिल्टर कैसे करना है, वो जब होगा जब आपको एग्जाम का ना रिक्वायरमेंट पता हो कि इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट ये है, मुझे इस तरीके से कैरी करनी है, अदरवाइज घूमते रह जाओगे, साल के साल बीत जाएंगे, चीजें बड़ी लेट समझ में आएंगी जो मैं तुम्हें आज बता रहा हूं। और तब तक 4-5 अटेम्प्ट जा चुके होंगे, समझ ही नहीं आया कि सब कुछ तो कर रहे हैं पर कमी कहां रही, कमी यहाँ रही, या फिल्टर नहीं कर रहे, आपको ये दिखता है कि रिक्वायरमेंट क्या एग्जामिनर क्या देखना चाह रहा है, वो क्या पूछना चाह रहा है। तो सेमिनल वेसिकल पेयर्ड है, located cranial and lateral to ampulla, opposite to seminal colliculi, common orifice होते vast difference seminal vesicle की, ये स्पेसिफिक चीजें होगी। नेचर ऑफ सिक्रेशन अल्कलाइन, व्हाई आई टोल्ड यू कि अगर पैसेज में कुछ स्ट्रेसेस है तो उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए। वॉल्यूम 50% आई टोल्ड यू। कुछ बफर होते हैं, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, न्यूट्रिशन, फ्रक्टोज, प्रोटीन। बफर के बारे में आपको बताना भूल गया था, बफर को भी आप मेंशन करो, बफर इंपॉर्टेंट चीज रोल प्ले करते हैं, नो डाउट अबाउट, बफर प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सिक्रेशन कंटेन फ्रक्टोज, प्रोटीन, पोटेशियम, सॉल्ट। अब ये बाइकार्बोनेट, एस्कॉर्बिक, सिट्रिक एसिड सोल्यूबल, इनके ऊपर ना लुक मारनी होती है, बस मेंशन करना हमारी मजबूरी है। लोग देखो एक बार
ब्रॉडली अगर कुछ याद आ जाए एग्जाम के टाइम पे तो वेल गुड, अदरवाइज दो भी आ जाए 50% बफर हो फ्रक्टोज, और फ्रक्टोज का इफेक्ट क्यों है? बिकॉज इट हेल्प्स इन लोइंग द सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, ऑल दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। ये ठीक है, कभी कुछ माइंड में रह जाए, इट्स ओके, ना भी रहे तो ओके। फिर प्रोस्टेट ग्लैंड लोकेशन, सिंपल था ना वो डायग्राम में, आप लोकेशन से कहते हो क्रेनियल पोर्शन ऑफ पेल्विक यूरेथ्रा, दो पार्ट में होता है ये, पार्स प्रोपरी एंड पार्स डिसेमिनेट इन टू पार्ट। अब जो प्रीवियस होता सेंट्रल वेसिकल, उसके कंपैरिजन में ऐसे ठीक है थोड़ा सा। सिक्रीशन कंटेंट जिंक, ग्लाइकोलिटिक एंजाइम, प्रोटीनेसिस है तो वो भी बहुत सारे, पर याद नहीं रहने, और वो रिक्वायरमेंट भी नहीं हमारे एग्जाम के हिसाब से, ठीक है। तो लास्ट में बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, पेड ग्लैंड है, लोकेटेड ऑन ईदर साइड ऑफ पेल्विक यूरेथ्रा नियर इशियल आर्क, जहां पे बल्बो कैवर्नोसिस है, इशियो कैवर्नोसिस मसल्स है। फंक्शन क्या है? इन बुल ड्रिबलिंग सीन बिफोर माउंटिंग सिक्रीट from proceeding Cowper's gland which deletes harmful substances if present in urethra and make way clear for semen। I told you कि ये सीमन के लिए ना वे को क्लियर करते हैं, मान लो उससे पहले कुछ इजैकुलेशन से पहले यूरिनेशन हुआ है, सो ट्रेसेस को रिमूव करने के लिए, ओके, which delete harmful substances, कॉमन थिंग है, लॉजिक है। जहां पे एक तो हमारा सब्जेक्ट बोरिंग, ऊपर से हमारे पास मैटर बहुत ज्यादा, उसमें रटने भी लगे प्रॉब्लम हो जाएगी। जहां पे भी आप स्ट्रीमलाइन कुछ सोच सकते हो ना, जहां पे भी थोड़ा लॉजिक अप्लाई कर सकते हो, यूज करो उसको, याद करना इजी हो जाएगा। अब ब्लड नर्व सप्लाई, ओनली डेयरिंग स्टूडेंट्स कैन मेमोराइज दीज थिंग्स, हेयरिंग, ओके, बड़ा डिफिकल्ट है, मुझे नहीं याद हुआ याद तक। ब्लड सप्लाई, इंटरनल स्पर्मेटिक आर्टरी, इनर फाइबर, रीनल एंड कोटल मेसेंट्रिक प्लेक्सस, अभी एक बार पढ़ के लेते हैं तो आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि अभी एक है, तो आगे तीन हो रहेंगे, फिर हो जाओगे फंबल। और फिर जब प्रेशर में लिखोगे, अगर 5 सेकंड में ये चीज याद नहीं आई तो मूव ऑन कर जाओ, क्योंकि अगर ब्लफ करके तो मैं आई विल नेवर एवर रिकमेंड यू दैट यू शुड गो फॉर ब्लॉकिंग, कभी नहीं यार। यू नेवर नो, किसी दिन पहले क्वेश्चन में आपने कुछ ऐसा फैक्ट लिख दिया है, ऐसी बात लिख दी जो फैक्चुअली रॉन्ग थी, आपने ब्लफ कर दिया, इतना नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर, इतना नेगेटिव, तो बाद में वो अच्छे आंसर भी हुए उसको भी 1 नंबर कम दे देगा। इसीलिए देना इनिशियल कुछ क्वेश्चन जान बुझ के डिफिकल्टी होते हैं, मोरल तोड़ दो। प्रीलिम्स में कई बार अगर आपका सेट ऐसा है कि इनिशियल कुछ ऐसे हिस्ट्री के, आर्ट एंड कल्चर के ऐसे क्वेश्चन फंस गए, सुन आते हो, पहले 5 क्वेश्चन देखे, 5 में से एक भी नहीं आता, मोरल वहीं पे डाउन। But somehow you have to keep your patience, calmness. Okay. So scrotum में external pudendal artery, nerve fiber, genital nerve, डिफिकल्ट है याद करना, इतना आसान नहीं है, लॉजिक लगाना बहुत जरूरी है लाइफ में। अब पेनिस की ब्लड सप्लाई, इंटरनल एंड एक्सटर्नल pudendal artery, nerve fibers, autonomic nerves from pelvic plexus, pudendal and hemorrhoidal nerves। एक बार नजर मारने में भी कोई बुराई नहीं, जितना मैक्सिमम आप मेमोराइज कर सको इट्स बेटर। accessory sex glands, blood supply, large animal internal pudendal artery, dogs में prostatic artery, nerve fiber, autonomic nerves from hypogastric and pelvic plexus। So big names, so dangerous names। डेली 4 घंटे बोलना ही बड़ा डिफिकल्ट है।
अब ये सीमेन क्वालिटी, सीमेन प्रिजर्वेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ये सेगमेंट है इंपॉर्टेंट, इजी भी है बट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनने के चांस यहां से बहुत ज्यादा है। वैल्यूएट का पर्पस क्या है, प्रिंसिपल क्या है, बेनिफिट्स क्या है, आइडियल प्रॉपर्टीज क्या है, इन विवो कैसे इफेक्ट होता है, इन विट्रो कैसे होता है, व्हाट इज द मेथोडोलॉजी ऑफ सीमेन प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, stress detection, all these things are important in easy. Repeated breeding and stress, again easy topic, easy. ठीक है, तो इन टॉपिक से आप एक्सपेक्ट करो, होप करो कि आपको क्वेश्चन दिखे, क्योंकि स्कोरिंग है और एफर्ट इसमें 10% ही डालता है, 10% में आपको काफी कुछ मिल जाएगा। ओके, तो ये जो चीज है इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखिए। आज के लिए इंट्रोडक्टरी लेक्चर था कि अल्टीमेटली आंसर्स लिखने कैसे, इंपॉर्टेंस कैसे, फिल्टर कैसे करना चीजों को, एंड कीप स्टडिंग। और करंट अफेयर्स पे रखो यार, नजर रखो करंट अफेयर्स पे ना, पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है देश दुनिया में, फॉरेन पॉलिसी कैसे इंपैक्ट होगी। बहुत कुछ बातें होंगी जो मैं खुद ही आपको वैसे ही क्लास में बता दूंगा, जीएस की जो अखबार में, न्यूज़पेपर में चल रही है, पर थोड़ा सा इंटरेक्ट करके तो अच्छा लगता है, हमें भी रेस्ट मिलता है कि थोड़ा बहुत आप बोल लोगे तो मुझे रेस्ट मिल जाएगा। ओके, तो अगर है कोई क्वेश्चन तो बताइए, नहीं तो फिर आज की क्लास एंड करते हैं। एनी क्वेश्चन? नो सर। ओके, थैंक यू फॉर द क्लास, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सर। बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर, सर। ये पीपीटी व्हाट्सएप पर डाल दीजिए। सॉरी सर, ये पीपीटी जो है आज से का है ना, तो थोड़ा जी? व्हाट्सएप पर डाल दीजिए। हाँ, मैं मैनेजमेंट को दे दूंगा, वो डाल देंगे। ओके हाँ ठीक है, थैंक यू। ओके ओके ओके, थैंक यू, गुड नाइट, गुड नाइट।